Namaste to all. I am here with DAV Public School Bihar Zone Annual Examination Class 7 Subject Mathematics Question Paper and their Solutions. पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देख लें। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए में 1, 2 सेक्शन 1 और 2 है। सेक्शन 1 में 12 क्वेश्चन हैं जो कि 1 मार्क्स के हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQ टाइप। सेक्शन 2 है जिसमें केस स्टडी क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स के। ये हो गया पार्ट ए सेक्शन 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्वेश्चन 13 केस टाइप स्टडी क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स का। क्वेश्चन 14 भी केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 14 फ्रॉम 15 सेक्शन 3 पार्ट बी ईच क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। 15 से 20 तक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। 21 से 26 तक प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन 27 से 33 तक प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। ये सारा क्वेश्चन पेपर हो गया अप टू क्वेश्चन नंबर 31। अब इसका हम लोग यहाँ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/4। द राइट आंसर इज 3/4। वाई? क्योंकि -3/4 में हम लोग 3/4 को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए 3/4 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/4। इफ x, y, z are rational numbers, then the property x plus y plus z equal to x plus y plus z is known as, it is the associative property. Why? Commutative property is not x plus y equal to y plus x. Distributive property is also not, because distributive property, closure property is also not a plus b equal to c. So right option is B. Question third, 12% of 50 plus 5% of 120. 12% of 50 plus 5% of 120. By cancellation we can get 12. So right option is 12. Question 4, which of the following congruence condition is not true for the congruence of two triangles? SAS side angle side, it is right. SSS is not exist. SSS triple S side is also right. ASA angle side angle, it is also right congruence condition. So right answer is SSA. Question 5, what are the possible dimensions for constructing a triangle of perimeter 5 meter? Everybody know that the sum of two sides of a triangle is always greater than third side. 1 plus 1, 2, that is less than 3, so it is not possible. 1 plus 2 is 3, greater than 2. 2 plus 2 is 4, greater than 1, so it will be possible. Question option C, 2 plus 2, 4 is not greater than 4. 2 plus 3, 5 is not greater than 5, so right answer is B. Question 6, triangle ABC congruent to triangle PQR, which of the following is not true? ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है, इट मीन्स इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। ए का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट पी है, एंगल ए इक्वल टू पी, राइट। BC साइड का कोरस्पॉन्डिंग साइड QR है, यह भी राइट है। एंगल बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल Q है, जबकि यहाँ R लिखा हुआ है, यानी यह सही नहीं है। आगे भी देख लेते हैं, साइड AC का कोरस्पॉन्डिंग साइड PR है, यह भी सही है। एक ऑप्शन सही नहीं है जो कि ऑप्शन C है, इसलिए इसका राइट आंसर C हो गया। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरिया ऑफ सर्कल? इट इज द फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई r स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। द ऑब्जर्वेशन दैट occurs मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन डाटा इज कॉल्ड मॉड। Question 9, SCF of 16 meter and 4 meter square. What is common? It is 4 and meter. So SCF is 4 meter. Question number 10, value of 20% of 240 kilometer.
20% ऑफ 240 किलोमीटर, 20% में 20/100 इंटू 240, 0 0 कैंसिल, 24 इंटू 2 48 किलोमीटर. सो द राइट आंसर इज 48 किलोमीटर, ऑप्शन ए. Question number 11. In a linear equation, power of variable is 1. Always, every time, power of variable is 1. Question 12. 7/12 into minus 12/7. 12 cancel, 7 also cancel. Left only -1. So right option is -1, C option. So the right answer of question 12 is C, -1. Now section 2, question number 13. A group of 10 students visited a blind school. They wanted to help the school by donating some money. They donate 120 rupees, 125, 100 rupees, 50 rupees, 75 rupees, 100 rupees, 150 rupees, 100 rupees, 75 rupees and 85 rupees for this purpose. Now question is, what is the mean of above data of donation? Mean जस्ट लाइक एवरेज. हमें मीन निकालने के लिए क्या करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन का सम फाइंड करके बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये सारा का सम 980 रुपीज़ होता है. टोटल ऑब्जर्वेशन 10 है, तो 980/10 इट मीन्स 98. इसका आंसर 98 है, जो कि ऑप्शन में 9.8 लिखा गया है, लेकिन यह 98 अगर आप लिखे हैं वो भी ठीक है. 9.8 98 समझा जाएगा. क्वेश्चन 2. व्हाट इज द मीडियन ऑफ एबव डाटा ऑफ डोनेशन? फर्स्ट वी शुड अरेंज द डाटा इन असेंडिंग आइदर डिसेंडिंग ऑर्डर एंड मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज 100 and 100, दैट इज 5th and 6th टर्म. ये दोनों का हमें मीडियन निकालने के लिए मीन निकालना पड़ेगा. सम ऑफ बोथ बाय 2. 100 plus 100/2, it means 200/2, 100. So right answer is 100. Question 3. What is the mode of above data of donation? Already हमने ascending order में इसको अरेंज कर लिया है. Maximum times occurred data is 100, 1 2 3 times. So mod is also 100. Question 4. What value of the student is depicted here? यहाँ वैल्यू क्या दिखाया जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा? तो 10 स्टूडेंट ब्लाइंड स्कूल विजिटेड किए हैं, चैरिटी भी हुआ, वो काइंडनेस भी दिखाया, वहाँ काइंडफुल वर्क भी किए. 10 स्टूडेंट का ग्रुप गया है, टीम स्पिरिट भी हुआ, इसलिए ऑल होना चाहिए. ऐसे चैरिटी भी लिखे हैं तो वो भी सही है. क्वेश्चन 14. अकॉर्डिंग to a data p square minus 4p plus 3 road accident occurred in city A. 6p minus 7 plus 2p square road accident occurred in city B, and p plus 10 plus 2p square road accident occurred in city C. p का वैल्यू 4 दिया हुआ. यहाँ अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं. द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट occurred in सिटी ए. सिटी ए का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 3. इसमें p का वैल्यू पुट करेंगे 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3. 4 स्क्वायर 16, 4 इंटू 4 16 प्लस 3, 16 प्लस एंड माइनस कैंसिल, सो 3 लेफ्ट. सो राइट ऑप्शन इज बी 3. क्वेश्चन सेकेंड. द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स occurred in सिटी बी. सिटी बी का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 6p माइनस 7 प्लस 2p स्क्वायर. यहाँ p के जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 6p. 6 इंटू 4 माइनस 7 प्लस 2 इंटू वैल्यू ऑफ p इज 4, 4 स्क्वायर. 6 4 जा 24 माइनस 7 प्लस 4 4 जा 16 इंटू 2 32. 32 प्लस 24 एंड माइनस 7, तो हमें 49 मिलेगा. इस तरह से इसका आंसर 49 ऑप्शन बी होना चाहिए. क्वेश्चन थर्ड. द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स occurred in सिटी सी. सिटी सी का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है p प्लस 10 प्लस 2p स्क्वायर. p के जगह 4 दिया प्लस 10, 2 इंटू पी के जगह फिर 4, 4 का स्क्वायर, 4 प्लस 10 14, 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32, 14 प्लस 32 46. सो राइट आंसर इज 46 ऑप्शन ए.
द टोटल नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन सिटी ए, सिटी बी एंड सिटी सी। तीनों सिटी में जो रोड एक्सीडेंट हुआ तीनों को ऐड कर देना है। 3 + 49 + 46, जिसे कि हमको ऐड करने के बाद 98 मिलेगा, इसलिए राइट आंसर इज 98। क्वेश्चन नंबर 15 सेक्शन बी पार्ट बी सेक्शन 3, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/24 माइनस 7/36। 24 और 36 का एलसीएम 72 होगा, 72 एलसीएम हो गया। 24 × 3 72, 3 × 5 15, 36 × 2 72, 2 × -7 -14, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 15 + 14, 15 + 14 29, 29/72 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 सिंप्लीफाई है 1/2 माइनस पावर -2। हमने एक रूल्स पढ़ा है x/y टू द पावर -m, इट मीन्स y/x टू द पावर m। अगर निगेटिव पावर होता है तो बेस रेसिप्रोकल हो जाता है। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 यानी 2²। 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1 यानी 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसको ऐड करने के बाद 29 आ रहा है। इसका सही आंसर 29 होगा। क्वेश्चन 17 है कंपेयर द रेशनल नंबर 2/11 एंड 8/36। 2/11 और 8/36 को कंपेयर करके चेक करना है कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि करते हैं 2 × 36 72, 11 × 8 88, 72 से ग्रेटर 88 है, इसलिए सेकेंड फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। 8/36 इज ग्रेटर देन 2/11, इसलिए इसका ये कंपेयर हो गया, 8/36 ग्रेटर है। क्वेश्चन नंबर 18 फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल्स। ये बाइनोमियल है, इसका प्रोडक्ट करना है। तो पहले 7p से 2p, 2p से 7p -3q को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 2 14p × p p², 14p² -3q × 2p, -3 × 2 -6q × p pq -6pq। अब 5q से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 जा 35 p × q 35 pq, -3q + 5q -15q²। अब हमें जो लाइक टर्म है -6pq + 35pq, इसको ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा। 14p², 35 - 6 29pq -15q², ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज 12 मीटर एंड हाइट इज 60 डेसीमीटर। यहाँ हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ बेस है 12 मीटर बट हाइट जो है 60 डेसीमीटर है। इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे। मिली सेंटी डेसीमीटर, तो 10 से डिवाइड किया, 1010 कैंसिल, 2 × 6 12, 6 × 6 36 मीटर स्क्वायर, यह एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 20 इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी गिवन 44। ए बी और बी सी इक्वल है और ए और सी एंगल निकालना है। यदि ए बी और बी सी साइड इक्वल है तो एंगल बी 44 है। ए बी और बी सी यदि इक्वल हैं तो एंगल ए और सी इक्वल हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। तो एंगल ए + बी + सी = 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल बी दिया है 44, ए और सी दोनों इक्वल है, तो ए सी के जगह भी एंगल ए लिख लिया, 2 एंगल ए हो गया। 44 को RHS में भेजा, 180 - 44 136। अब 2 इधर RHS में भेजा, 136/2 68। एंगल ए आ गया 68 और सी एंगल ए का इक्वल, इसलिए ए और सी दोनों 68 डिग्री हो गया। क्वेश्चन 21 फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन a × a + b + 8a + 8b। यहाँ a कॉमन लिया गया, a + b है, इसमें से कॉमन क्या लें कि a + b अंदर में रहे। 8 यहाँ से कॉमन लेंगे तो a + b अंदर रहेगा। अब दोनों टर्म में a + b सेम है तो a + b को कॉमन ले लिया गया। फर्स्ट टर्म से a लेफ्ट रहा, सेकेंड टर्म से 8 लेफ्ट रहा। a + b × a + 8 इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 99, इफ वन एक्सीड द अदर बाय 9 फाइंड द नंबर्स। तो एक नंबर यदि एक्स लेट कर लेते हैं तो दूसरा एक्सीड कर रहा है 9, इसको x प्लस 9 लिख सकते हैं। एक नंबर x, दूसरा x प्लस 9, दोनों का सम है 99। यहाँ x प्लस एक्स 2x, 9 को उधर RHS में भेजेंगे, माइनस हो जाएगा 90 माइनस 9, 99 माइनस 9 90, 2 को अब भेजेंगे RHS में तो ये जाके डिवाइड हो गया, 90/2 डिवाइड 45। तो एक x 45 हुआ, दूसरा x प्लस 9, 45 प्लस 9 54 होंगे। इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। एक नंबर को यदि x लेते हैं तो दूसरा 99 माइनस एक्स, वहाँ एक को एक्सीड 9 से कर सकते हैं। उस तरह से भी इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई प्लस जेड व्हेन x इक्वल टू 3/4, y इक्वल टू 5/6 एंड z इक्वल टू 7/8। यहाँ x, y, z तीनों का वैल्यू दिया है, हमें x इंटू वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना है। यहाँ x इंटू वाई प्लस जेड, एक्स का वैल्यू 3/4 वैल्यू पुट कर दिया, इंटू वाई का वैल्यू 5/6 और जेड का वैल्यू 7/8। ये ब्रैकेट का पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6 और 8 का एलसीएम 24, 6 इंटू 4 24, 4 इंटू 5 20, 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 इंटू 3 24, 3 इंटू न्यूमरेटर जस्ट लाइक 7 21, 20 प्लस 21 41/24। यहाँ 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 8 24। अब ये न्यूमरेटर में बचा 41 और नीचे बचा डिनोमिनेटर में 4 इंटू 8 32। यह इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, ए सर्कुलर पीस ऑफ थिन वायर इज कन्वर्टेड इनटू ए रोम्बस ऑफ साइड 11 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पीस। यहाँ हमें रोम्बस का साइड दिया है तो रोम्बस का पहले पेरीमीटर निकालना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू साइड, 4 इंटू 11 44 सेंटीमीटर, जो कि ये सर्कुलर पीस है थिन वायर का, इसके पेरीमीटर के इक्वल है। तो जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पीस होगा वह पेरीमीटर ऑफ रोम्बस हो जाएगा। तो इसलिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पीस हो गया 2πr और 4 इंटू 11 44 सेंटीमीटर, यह सरकमफ्रेंस भी हो गया। इससे हम लोग रेडियस निकालेंगे। 2π को RHS में सेंड किया, 44/2π। अब पाई का वैल्यू देंगे 44/2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, 7 न्यूमरेटर में चला गया, 22 इंटू 2 44, 2 कैंसिल हो गया, 7 सेंटीमीटर बचा जो कि रेडियस है। इसलिए क्वेश्चन में दिया फाइंड द रेडियस, रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 बना सकते हैं। क्वेश्चन 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट। यहाँ पर LHS और RHS दोनों का बेस 3/4 है। एक्सपोनेंट LHS में 2x प्लस 1 है, जबकि RHS में एक्सपोनेंट 9 है। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाता है, 2x प्लस 1 इक्वल टू 9। अब इसे इक्वेशन की तरह सॉल्व कर देंगे। 1 को RHS में पहले भेजा जाएगा, 9 माइनस 1 8, 2 को भी RHS में भेजा जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में LHS में, RHS में वो जाकर के डिवाइड हो जाएगा, 8/2 4, x का वैल्यू 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी फेसेज, वर्टिसेज एंड एजेज विल ए स्क्वायर पिरामिड है। इसको फिगर ड्रॉ करके बनाया जा सकता है। स्क्वायर पिरामिड का बेस स्क्वायर होता है, जबकि अदर 4 वॉल्स जो होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं। ऊपर के 4 दीवार जो होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। तो टोटल एक बेस स्क्वायर फेस और ऊपर 4 ट्रायंगल्स, टोटल 5 फेसेज होते हैं। फेसेज हो गए 5, वर्टिसेज भी बेस में 4 वर्टिसेज और एक टॉप में, जहाँ सारा फेसेज ऊपर के मिलते हैं एक पॉइंट पर, वो यानी टोटल वर्टिसेज 5 हो गए। एजेज 4 बेस हो गया और 4 ऊपर के दीवार में होते हैं, टोटल 8 एजेज हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 सेक्शन 5 से हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC इन विच एंगल C 70 डिग्री, एंगल B 50 डिग्री और BC 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ BC एक 4 सेंटीमीटर का लाइन लेना है। यहाँ हमने एक रफ स्केच बनाया है। पॉइंट B पर 70 डिग्री एंगल कंपास से नहीं बनेगा, प्रोट्रैक्टर के हेल्प से बना लेना है। पॉइंट C पर 50 डिग्री का एंगल बनाना है, यह भी प्रोट्रैक्टर से बनाना है। ये दोनों एंगल्स के जो आर्म्स होंगे वो
एक दूसरे को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करेंगे। इस तरह से ABC रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया। ये कंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन नंबर 28, Ramit deposited 80,000 in a bank which pays him 6% interest. After 3 years, he withdraw the money and buy a car for 90,000. How much money is left with him? तो उसका जितना टोटल अमाउंट हुआ उसमें से 90,000 का एक कार खरीदा गया है। कार खरीदने के बाद कितना रुपया बचा ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल है 80,000, रेट है 6% और टाइम है 3 ईयर्स। सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल 80,000, रेट 6% में 6/100 इंटू टाइम 3 ईयर्स इंटू 3। 20 कैंसिल। यहाँ हमें 6 3 जा 18, 18 इंटू 8 144 आफ्टर 20 144 आफ्टर 20 SI हो गया। अब हमें अमाउंट निकाला। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI 80,000 प्लस 14,400 इट मीन्स 94,400 जो कि अमाउंट हो गया। इस 94,400 में 90,000 यूज किया गया है कार परचेज करने में, जिसे कि इसमें माइनस कर लेना है। माइनस करने के बाद 4,400 बचा जो कि लेफ्ट मनी है और यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 17.6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ सर्कमफ्रेंस दिया है सर्कल का। इससे पहले हम रेडियस निकालेंगे, फिर रेडियस फाइंड करने के बाद एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। सर्कमफ्रेंस दिया हुआ 17.6 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr। यह फॉर्मूला होता है। यह इक्वल टू, ये डेसिमल के बदले 10 डाल दिया। अब r का वैल्यू निकालना है। 2π को RHS में भेजेंगे। RHS में जाकर के ये डिवाइड होगा क्योंकि LHS में मल्टीप्लाई में है। 176/10 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2π यानी 2 × 22 पाई का वैल्यू 7 फिर न्यूमरेटर में चले जाएंगे। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। 22 × 8 176, 2 × 4 8, ये ऊपर में आया 4 × 7 28/10। ये रेडियस हो गया 28/10 इट मीन्स 2.8 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल πr² फार्मूला होता है। पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 28/10 आइदर 2.8। वह वैल्यू r² है इसलिए 28/10 2 टाइम्स मैंने लिखा हूँ। 28/10 इसलिए लिखा क्योंकि हमें कैंसिल करने में आसानी हो 7 से। 7 × 4 28। अब न्यूमरेटर में बचा 22 × 4 × 28 और डिनोमिनेटर में बचा 10 × 10। इसे और हम कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन ये कैंसिल करने के बाद और डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो के रहने देने से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने में आसानी होगी। 22 × 4 × 28 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2464 होगा। बाय 100, ये बाय 100 के बदले डेसिमल लिखेंगे तो 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30, a right angle triangle is isosceles. If the square of hypotenuse is 50 meter square, what is the length of each side? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर दिया हुआ है 50 मीटर स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ AC² इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर लिखा है फिगर में। और AB और BC ये दोनों साइड को इक्वल ले लिया है क्योंकि हाइपोटेनस के इक्वल कोई साइड नहीं हो सकते हैं। हाइपोटेनस को छोड़कर जो बचे हुए साइड हैं वही इक्वल हो सकते हैं। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। AB² प्लस BC² इक्वल टू AC², जहाँ की AC पाइथागोरस थ्योरम जहाँ हम लगा रहे हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये हाइपोटेनस है। AB x है और BC भी x है, इसलिए AB² मीन्स x का स्क्वायर, BC² मीन्स x का स्क्वायर। AC² यहाँ पर 50 मीटर स्क्वायर ही दिया है, इसलिए हमें स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं कि 50 मीटर का भी और स्क्वायर कर देते हैं, जबकि यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर हमें दिया हुआ है। x² प्लस x² 2x²। 2 को RHS में भेजेंगे 50/25 आएगा। 25 5 मीटर का स्क्वायर होता है।
स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल टू के बोथ साइड पावर सेम है। x इक्वल टू 5 मीटर आया जो कि एक साइड हो गया, और हमें प्रत्येक इक्वल साइड निकालना है। लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इज 5 मीटर। प्रत्येक इक्वल साइड 5 मीटर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल हुई साइड्स आर 15 मीटर एंड 8 मीटर। यहाँ रेक्टेंगल का दो साइड लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। ये ABCD हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, इसमें लेंथ 15 मीटर है और ब्रेथ 8 मीटर है। ये डायगोनल AC को हमने ज्वाइन किया। अब ABC जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, सो एंगल B इज 90 डिग्री। ये राइट एंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, जिसमें कि AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर BC स्क्वायर। AC का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है, AB का वैल्यू 15 मीटर दिया हुआ है, 15 मीटर का स्क्वायर। BC का वैल्यू दिया है 8 मीटर, 8 मीटर का स्क्वायर। 15 मीटर का स्क्वायर 225 होता है, 8 मीटर का स्क्वायर 64 होता है। 225 प्लस 64 को ऐड करेंगे तो 5 प्लस 4 9, 289 होगा, और जो कि 289 17 का स्क्वायर होता है। 17 मीटर का स्क्वायर स्क्वायर AC स्क्वायर LHS में है, RHS में 70 मीटर का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर है पावर में, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। AC इक्वल टू 17 मीटर रहेंगे जो कि हाइपोटेनस है राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, और रेक्टेंगल का डायगोनल्स है। तो AC हो गया 17 मीटर, और दूसरा भी डायगोनल अगर हम इसी तरह से खींचें तो वह भी 17 मीटर ही आएगा। इसलिए डायगोनल जो रेक्टेंगल का होगा वो 17 मीटर हो जाएगा। इस तरह से हमने टोटल 31 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ये टोटल 31 क्वेश्चन दिए हुए थे। थोड़ा तेज़ी से इसको सॉल्व किया क्योंकि कम समय में ये सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमें डिस्कस करना था। अगर इसमें किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होता है तो इंडिविजुअली आप पूछ सकते हो उस क्वेश्चन नंबर का, उसको डिटेल से हम लोग फिर से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको समझने में सावधानी हो, समझने में अच्छा हो, आप अच्छे तरीके से समझ जाए। ओके, थैंक यू। ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप अधिक से अधिक बार देख करके क्वेश्चंस को समझें, मैथमेटिक्स को समझें, जिससे कि आपको आसानी हो। थैंक यू।